Very good morning, class. Welcome to lecture 18 of Unit 3. And this lecture will be basically about fuel cell. Okay, so in this lecture, we'll talking about the fuel cell, its basic principle, its construction, its application, limitation, and future scope. Okay, so let us have a look about the fuel cell in this entire lecture. So first, let us look what is the outline of this entire lecture. So the outline of this entire lecture will be as follows. It will be like this. So we'll start with the fuel cell, and outline is we'll start with introduction, then design principle and operation of fuel cell, then types of fuel cell, comparison of fuel cell with battery cell and IC engine, fuel cell efficiency, advantages and disadvantages, application of fuel cell, and recent development. So these are the 8 topics which we have to cover in this lecture under the topic of fuel cell, and we'll discuss about each and every topic in detail in this entire lecture, and it will be discussed one by one. Before starting this lecture, let us have a look towards its introduction. And introduction starts with the question that what is a fuel cell? एक्चुअल में फ्यूल सेल है क्या और किसे कहते हैं हम फ्यूल सेल, किस कॉम्बिनेशन को हम फ्यूल सेल कहते हैं. ठीक है, तो जब इसका डेफिनेशन हमें देना होगा तो हम ये कह सकते हैं कि अ फ्यूल सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस. ठीक है, तो सबसे पहला जो बात निकल के आती है वो ये है कि अ फ्यूल सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस. A fuel cell converts the chemical hydrogen and oxygen into water. So it is an electrochemical energy conversion device in which it converts the chemicals hydrogen and oxygen into water. Is a device that generates electricity by the chemical reaction. देखो, जब आपका केमिकल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो यहां से केमिकल रिएक्शन की वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. ठीक है, अ फ्यूल सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस, द फर्स्ट थिंग. द सेकंड थिंग इज दैट अ फ्यूल सेल कन्वर्ट्स द chemical hydrogen and oxygen into water. So it is a device that generates the electricity by a chemical reaction. अब इसकी अगर हम बेसिक कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो एवरी फ्यूल सेल हैज टू इलेक्ट्रोड. एक होता है पॉजिटिव जिसको हम कहते हैं कैथोड, और एक होता है नेगेटिव जिसे कहते हैं हम एनोड. सो एवरी फ्यूल सेल हैज टू इलेक्ट्रोड, that is one positive and one negative, called cathode and anode respectively. The reaction that produce electricity take place at the electrode. तो जो भी केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो कहां पे आकर होती है? इट टेक प्लेस एट द इलेक्ट्रोड. So we will start with a question that what is fuel cell, and we came to know that a fuel cell is an electrochemical energy conversion device that converts the chemical hydrogen and oxygen into water. It means it generates the electricity by chemical reaction, and in every fuel cell it has two electrodes, one positive and one negative, called cathode and anode respectively. The reaction that produce electricity take place at the electrode. ठीक है, so it was all about the introduction of the fuel cell, that what is the definition of fuel cell, how it converts the chemical hydrogen and oxygen into water, by what process the electricity is being generated, right? Now the next question is that why we need fuel cell, हमें जरूरत क्यों पड़ी fuel cell की, right? So we all know that there is a energy crisis all over the world, right? So due to energy crisis all over the world,
वी नीड सम ऑफ द अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर से ही बता रहा हूं कि जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है वो क्या हो रही है, वो गायब हो रही है, राइट, इट इज गेटिंग एक्सटेंड। तो उसकी वजह से हमको कुछ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस पे डिपेंड करना पड़ेगा। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या होती है, जो रिन्यूएबल होती है। तो उनमें से नॉन कन्वेंशनल में से फ्यूल सेल भी आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में आता है, ठीक है। तो पहला नीड क्यों आया, ड्यू टू एनर्जी क्राइसिस ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ठीक है। दूसरा, ड्यू टू द इशू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। हमें पता है जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है जैसे कोल वगैरह है, फॉसिल फ्यूल है, तो ये इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग के केसेस काफी बढ़ रहे हैं, राइट। बट फ्यूल सेल की वजह से ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू है वो नहीं बढ़ेगा। तो ड्यू टू द इशू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वी आर स्विचिंग फ्रॉम द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज टू द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। तीसरा, ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट रिन्यूएबल सोर्सेज एट ईच एंड एवरी प्लेसेस ड्यू टू जियोग्राफिक कंडीशन। मैंने बताया है कि रिन्यूएबल सोर्सेज ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट रिन्यूएबल सोर्सेज at each and every places due to geographic condition, ठीक है। Fuel cell provides an alternate, efficient, non-polluting power source that produces no noise and has no moving part, ठीक है। ये नॉन पॉल्यूटिंग वाटर सोर्स है जिसमें नो नॉइज, इट क्रिएट्स नो नॉइज एंड हैज नो मूविंग पार्ट। It is expected that by 2050 the global energy demand is going to rise by 2 to 3 times। तो जो हमारी अभी एनर्जी डिमांड है ऑन ग्लोबल स्केल, ये एक्सपेक्ट किया गया है कि 2050 तक इसका डिमांड ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम प्रेजेंट डिमांड से ज्यादा होगा। तो उन डिमांड को मीट करने के लिए हमको अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें फ्यूल सेल की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दैट व्हाई वी नीड फ्यूल सेल। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं डिजाइन प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन। सो दिस स्लाइड विल in this slide we'll discuss about the design principle and operation। देखो, अब इसके हम डिजाइन प्रिंसिपल पे बात करते हैं। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है इसका, उसमें ये है कि इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट होगा और दो इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। द कोर ऑफ ईच फ्यूल सेल कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। एक सोल्यूशन होगा इलेक्ट्रोलाइट और उसमें दो डिप करेंगे हम इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। एट द नेगेटिव एनोड, मतलब जो एनोड है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। एट द नेगेटिव एनोड of fuel such as hydrogen is being oxidized, while at the positive cathode oxygen is reduced। Ions are transported to the electrolyte from one side to the other, ठीक है। तो हमने एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लिया, उसमें हमने दो इलेक्ट्रोड रखे, ठीक है। जो नेगेटिव है हमारा इलेक्ट्रोड, वो इसको हम क्या एनोड कहते हैं, वहां पे हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। तो हम एनोड पे क्या कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। तो अगर हम हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करते हैं तो उसका रिएक्शन क्या होगा, उसका रिएक्शन ये होगा, राइट। तो इट इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। हाइड्रोजन को हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। 2H2 gives 4H plus plus 4E minus, ठीक है। while at the positive cathode, अगर हम कैथोड की बात करें, अगर हम कैथोड की बात करें तो हम वहां पे क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को रिड्यूस करते हैं। तो रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द कैथोड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द एनोड। सो दिस इज योर what, this is your cathode, and at cathode, at positive cathode reduction reaction is taking place, ठीक है। तो एनोड पे हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन किया, और कैथोड पे हमने क्या किया, रिडक्शन रिएक्शन किया। अब हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों तो हो गया। अब इन दोनों के बाद मैं दिखाता हूं कैसे आपको नेट रिएक्शन मिलेगा, राइट। तो विल गेट द नेट रिएक्शन फ्रॉम हियर, और नेट रिएक्शन हमको कुछ ऐसे मिलेगा कि 2H2 plus O2 gives 2H2O, ठीक है।
देखो हमने एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ले लिया, राइट। हमने उसमें दो इलेक्ट्रोड रखे, एक एनोड होगा एक कैथोड होगा, ठीक है। एनोड का मतलब नेगेटिव, कैथोड का मतलब पॉजिटिव। तो एनोड पे हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। और वहां पे कौन सा क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा फ्यूल, सच एज हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज, ठीक है। और पॉजिटिव कैथोड पे कौन सा फ्यूल जो है रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन इज रिड्यूस, ठीक है। और आयंस जो है वो कहां से कहां तक ट्रांसपोर्ट होता है, इट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द वन साइड टू द अदर। तो केमिस्ट्री क्या होती है फ्यूल सेल की, एनोड पे हमने क्या किया, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन को हाइड्रोजन को वो कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। तो 2H2 विल गिव 4H प्लस प्लस 4E माइनस। और कैथोड पे हमने क्या किया, जो पॉजिटिव है हमारा, उस पे हमने ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया। तो O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4E माइनस विल गिव 2H2O। तो इन दोनों का नेट रिएक्शन क्या निकल के आया, 2H2O प्लस O2 गिव्स 2H2O, राइट। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, ठीक है। ये तो था इसका प्रिंसिपल। अब देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल सेल, ठीक है। हमने इंट्रोडक्शन के बारे में जान लिया कि फ्यूल सेल होता क्या है, कौन सा डिवाइस है। उसके बाद हमने ये जानने की कोशिश की व्हाई वी नीड फ्यूल सेल, हमें जरूरत क्यों पड़ी फ्यूल सेल की, हमने ये भी जान लिया। अब फ्यूल सेल की जरूरत के बाद हमने उसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल जानने की कोशिश की। उसके बाद हम जानेंगे अब व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल सेल, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन है, ठीक है। और वो क्लासिफिकेशन टेम्परेचर रेंज के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है, ठीक है। तो फ्यूल सेल का जो ऑपरेशन है वो हमारा टेम्परेचर वेरिएबल है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द टेम्परेचर रेंज इन विच दे ऑपरेट, दैट इज लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर है 25 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर मीडियम टेम्परेचर वो है 100 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड। हाई टेम्परेचर इट इज 500 टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड वेरी हाई टेम्परेचर इट इज अबव 1000, ठीक है। तो अकॉर्ड ये अगर हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम इसको सब डिवीजन करेंगे, तो ये लो टेम्परेचर मतलब 25 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मीडियम टेम्परेचर मतलब 100 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और हाई टेम्परेचर मतलब 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, और वेरी हाई टेम्परेचर मतलब अबव 1000। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन इसको इलेक्ट्रोलाइट के टाइप पे करते हैं, ठीक है। पहला तो टेम्परेचर के बेसिस पे करें, पहला वेरिएबल। दूसरा वेरिएबल है इलेक्ट्रोलाइट, उसके उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक्वस, नॉन एक्वस, मॉल्टन और सॉलिड, ठीक है। और तीसरा हमारा वेरिएबल है फिजिकल स्टेट ऑफ द फ्यूल, जैसे गैस, हाइड्रोजन, लोअर हाइड्रोकार्बन, लिक्विड, अल्कोहल, हाइड्रोजीन, हायर हाइड्रोकार्बन, और सॉलिड दैट इज मेटल, ठीक है। तो हमारा तीन वेरिएबल है क्लासिफिकेशन का, टेम्परेचर रेंज, इलेक्ट्रोलाइट टाइप और फिजिकल स्टेट, ठीक है। फिजिकल स्टेट तीन स्टेट होते हैं ना, गैस, लिक्विड, सॉलिड। तो गैस में हाइड्रोजन और लोअर हाइड्रोकार्बन आएगा, लिक्विड में अल्कोहल आएगा, हाइड्रोजीन आएगा, हायर हाइड्रोकार्बन आएगा, और सॉलिड में मेटल आएगा। अब अनदर क्लासिफिकेशन देखते हैं। अनदर क्लासिफिकेशन में इसको हमने दो तरीके से सब क्लासिफिकेशन किया है, प्राइमरी फ्यूल सेल और दूसरा है सेकेंडरी फ्यूल सेल। तो reactants are passed through the cell only once and the products of the reaction being discarded, that is H2O2 fuel cell, ठीक है। और secondary fuel cell जो है, reactants are passed through the cell many times because they are regenerated by different methods, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, क्लोरीन फ्यूल सेल, ठीक है। देखो प्राइमरी फ्यूल सेल और सेकेंडरी फ्यूल सेल, प्राइमरी फ्यूल सेल में क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं दोज आर पास through the cell only once and the products of the reaction being discarded, जैसे H2O2 fuel cell। और secondary fuel cell क्या है, reactants are passed through the cell many times because they are regenerated by different methods। तो हम प्राइमरी फ्यूल सेल में रिएक्टेंट को एक बार पास करते हैं, लेकिन सेकेंडरी फ्यूल सेल में हम रिएक्टेंट को सेवरल टाइम पास करते हैं। अब जब प्राइमरी फ्यूल सेल में हम एक बार पास करते हैं, तो उसमें जो रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन होता है, उसको हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं।
और इस तरह के प्राइमरी फ्यूल सेल बेसिकली किस तरह के होते हैं, H2O2 फ्यूल सेल। और जो सेकेंडरी फ्यूल सेल होते हैं उसमें रिएक्टेंट को हम मेनी टाइम्स बिकॉज दे आर रीजनरेटेड बाय डिफरेंट मेथड सच एज नाइट्रिक ऑक्साइड क्लोरीन फ्यूल सेल। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ फ्यूल यूज, जो हम डिफरेंट टाइप के फ्यूल यूज करते हैं उसके बेसिस पे हमारा क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कि जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट ऑफ द फ्यूल। तो फिजिकल स्टेट में मैंने आपको बताया था लिक्विड में अल्कोहल, हाइड्रोजन, हायर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यहां हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ फ्यूल यूज। तो उसका 4 क्लासिफिकेशन है, हाइड्रोजन, फॉसिल फ्यूल, एमोनिया फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल के बारे में। तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है वो 40% आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मतलब KOH, 40% KOH solution as electrolyte। ठीक है, which is used as a ion exchange membrane। अब ये जो ion exchange membrane है, this membrane is non permeable to the reactant gases hydrogen and oxygen, which thus prevents them from coming into contact। जब हमारा नॉन परमिएबल होगा तो जो रिएक्टेंट है गैसेस है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच दस प्रिवेंट फ्रॉम द कमिंग इनटू द कांटेक्ट। तो जो मेम्ब्रेन से हमारे जो गैसेस हैं वो कांटेक्ट में नहीं आएंगे बिकॉज आवर मेम्ब्रेन इज नॉन परमिएबल। ओके, द मेम्ब्रेन इज however permeable to hydrogen ion which are the current carriers in the electrolyte। लेकिन ये जो मेम्ब्रेन होता है ये हाइड्रोजन आयन के परमिएबल होता है। ठीक है, और आपका हाइड्रोजन आयन क्या होता है, these are the current carriers in the electrolyte। The desired properties of an ideal ion exchange membrane electrolyte are high ionic conductivity, zero electronic conductivity, low permeability of fuel and oxidant, low degree of electroosmosis, high resistance to dehydration, high resistance to its oxidation or hydrolysis, and mechanical stability। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल के 3-4 सिग्निफिकेंट फीचर हैं। सबसे पहला ये है कि 40% KOH solution will be used as electrolyte। ठीक है, it means it is an ion exchange membrane, it is used as an ion exchange membrane। दूसरा इसका फीचर है कि the membrane is non permeable to the reactant gases hydrogen and oxygen which thus prevent them from coming into contact। But however the membrane is permeable to hydrogen ion which are the current carriers in the electrolyte, right? The desired properties of an ideal ion exchange membrane electrolyte are high ionic conductivity, zero electronic conductivity, low permeability of fuel and oxidant, low degree of electroosmosis, high resistance to dehydration, high resistance to its oxidation or hydrolysis, and mechanical stability। ठीक है, तो ये था आपका ऑल अबाउट हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। इसमें दो चीज जानो कि जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है वो 40% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और जो हमारा मेम्ब्रेन है वो नॉन परमिएबल है। तो उसकी वजह से जो रिएक्टेंट गैसेस है वो हमारे मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में नहीं आएगा। लेकिन हमारा जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन है, वो परमिएबल होता है, तो वो जो है आपके मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा और दीज आर यूज्ड एज अ करंट कैरियर्स इन दी electrolyte। So this was the basic principle of hydrogen oxygen cell। दूसरा है fossil fuel cell। The most interesting fuel cell are for the near future unmodified hydrogen oxygen cell in which a gaseous or liquid hydrocarbon is the source of hydrogen। तो अब हम बात करेंगे fossil fuel cell। fossil fuel cell का जो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक कहो या फीचर कहो ये है कि this is modified as hydrogen oxygen cell in which a gaseous or liquid hydrocarbon is the source of hydrogen। Coal may be served as the primary energy source for fuel cell। ठीक है, ये तो फॉसिल फ्यूल सेल है, तो इसमें कौन सा फॉसिल फ्यूल हम यूज करेंगे एनर्जी सोर्स के लिए, कोल। ठीक है, कोल बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल हैव 3 मेन कंपोनेंट्स।
the fuel processor which convert the fossil fuel into hydrogen rich gas, the power section consisting of the actual fuel cell or combination of cell, and the inverter for changing the direct current generated by the fuel cell into alternating current to be transmitted to user. ठीक है, तो ये है आपका फॉसिल फ्यूल सेल जिसमें हम कोल को एज अ प्राइमरी एनर्जी सोर्स यूज करते हैं. ठीक है, देखो, द मोस्ट इंटरेस्टिंग फ्यूल सेल फॉर द नियर फ्यूचर आर मॉडिफाइड हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल इन विच अ गैसियस और लिक्विड हाइड्रोकार्बन इज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन. आने वाले टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे इंटरेस्टिंग फ्यूल सेल होगा वो है आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, जिसमें आपका गैसियस या लिक्विड हाइड्रोकार्बन को हम सोर्स ऑफ हाइड्रोजन की तरह यूज करेंगे. ठीक है, देखो अब जो कोल है आपका, it is serve as the primary energy source for fuel cell, and the cell based on the fossil fuel have three main component. तीन मेन कंपोनेंट हैं इस फॉसिल फ्यूल सेल के. क्या? पहला है द फ्यूल प्रोसेसर. यू कैन सी इन दिस डायग्राम the fuel processor which convert the fossil fuel into hydrogen rich gas. इस fuel processor का काम क्या होता है? It convert the fossil fuel, ये fossil fuel को hydrogen rich gas में convert करता है. The power section consisting of the actual fuel cell or a combination of cell. ठीक है, ये आपका power section है. This power section consists of the actual fuel cell or a combination of cell and the inverter, and this is your inverter for changing the direct current generated by the fuel cell into alternating current to be transmitted to user. ठीक है, तो ये था आपका फॉसिल फ्यूल सेल. अब हम बात करेंगे अमोनिया, दैट इज NH3. अमोनिया NH3 as a fuel cell. Ammonia gas obtained from the stored liquid is decomposed catalytically into hydrogen and nitrogen. Part of the hydrogen is burned in air to provide the heat required for the decomposition. Other hydrogen is supplied to the negative electrode of the hydrogen cell in which potassium hydroxide is used as electrolyte. The nitrogen produced due to decomposition is an inert gas and plays no role in the cell. The advantage of ammonia as fuel is that it can be stored in the liquid form. The disadvantage include higher vapor pressure and cell operates satisfactory at low temperature. Right. So this is all about your ammonia. अब अमोनिया को हम स्टोर कैसे करते हैं और डिकम्पोज कैसे करते हैं, और अमोनिया गैस हमको ऑब्टेन कैसे होता है. ठीक है, in this type of cell, ammonia gas is obtained from the stored liquid, is decomposed catalytically into hydrogen and nitrogen. तो जो अमोनिया है हमारा स्टोर्ड लिक्विड में हमारा पाया जाता है, इसको हम डिकम्पोज करते हैं हाइड्रोजन में और नाइट्रोजन में. ठीक है, देखो, इन दिस the ammonia gas obtained from the stored liquid. पहले अमोनिया गैस हमें मिलता कहां से? जो स्टोर्ड लिक्विड है उससे हमको अमोनिया गैस मिलता है और उसको हम डिकम्पोज करते हैं. हाउ इट इज डिकम्पोज? इट इज डिकम्पोज कैटालिटिकली इनटू हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन. राइट, पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन इज बर्न. अब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में जब हमने, देखो, स्टोर्ड लिक्विड से हमने अमोनिया लिया, उस अमोनिया को हमने कैटालिटिकली डिकम्पोज किया हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में, और जो हमारा हाइड्रोजन है, द पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन इज बर्न इन एयर टू प्रोवाइड द हीट रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन. अब उस हम हाइड्रोजन को बर्न करते हैं एयर में टू प्रोवाइड द हीट रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन. ठीक है, अदर हाइड्रोजन is supplied to the negative electrode of the hydrogen cell in which potassium hydroxide is used as electrolyte. ठीक है, एक पार्ट को हमने बर्न किया एयर में और उससे हीट हमने प्रोड्यूस किया which is required for the decomposition. Other hydrogen is supplied to the negative electrode. जो अदर पार्ट है उसको हमने किस पे सप्लाई किया? नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द हाइड्रोजन सेल इन विच पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, समझ आया? नहीं समझ आया? ठीक है, कोई बात नहीं. देखो,
स्टोर लिक्विड से अमोनिया को लियो, उसको कैटेलिटिकली डिकम्पोज करो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में, एक पार्ट हाइड्रोजन का बर्न करो एयर में, इट विल प्रोड्यूस द हीट रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन, अदर पार्ट को सप्लाई करो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, और उसके बाद उससे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वहां पे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में यूज करो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यू कैन यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। द नाइट्रोजन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डीकम्पोजिशन इज एन इनर्ट गैस एंड प्लेज नो रोल इन द सेल। तो जो आपका नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन तो हमने यूज कर लिया इलेक्ट्रोड पे, जो हमारा नाइट्रोजन है वो it is actually an inert gas and plays no role in the cell. The advantage of ammonia as fuel is that it can be stored in the liquid form, ठीक है। The disadvantage include higher vapor pressure and cell operates satisfactory at low temperature, ठीक है। तो ये था अमोनिया। अब हाइड्रोजन, अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? हाइड्रोजन का केमिकल फॉर्मूला होता है N2H4 as a fuel cell. So let us discuss about hydrogen, that is N2H4 as a fuel cell. So a compact fuel cell for mobile application, possibly for vehicle propulsion, utilizes the liquid hydrogen as a fuel and a hydrogen peroxide or air as the energy source. Hydrogen is injected as required into the aqueous potassium hydroxide electrolyte to provide the active material at the negative electrode. The oxygen is either supplied by decomposition or from air. The electrode is made up of nickel, it is negative, or silver, positive as the electrochemical catalyst. The overall chemical cell reaction is the oxidation of hydrogen to water and nitrogen, but the discharged EMF is similar to that of the hydrogen oxygen cell, ठीक है। देखो अब इसको मैं एक बार थोड़ा सा समझाने की और कोशिश करता हूं। हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन का केमिकल फॉर्मूला जो है वो है N2H4, ठीक है। सो हाउ विल यूज हाइड्रोजन एज अ fuel? A compact fuel cell for mobile application, possibly for vehicle propulsion, utilizes, देखो ये जो आपका यूज होता है ये बेसिकली व्हीकल प्रोपल्शन के लिए हम इस फ्यूल सेल का यूज करते हैं, ये मोबाइल एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इट इज यूज फॉर व्हीकल प्रोपल्शन, इट यूटिलाइजेस द लिक्विड हाइड्रोजन एज अ फ्यूल and hydrogen peroxide or air as the energy source. Hydrogen is injected as required into the aqueous potassium hydroxide electrolyte to provide the active material at the negative electrode, right? So जो hydrogen है, it is injected as required into the aqueous potassium hydroxide electrolyte, which provide the active material at the negative electrode. और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? The oxygen is either supplied by decomposition or from air. The electrode is made up of nickel, that is negative, or silver, that is positive, as the electrochemical catalyst. Okay, the overall cell reaction is the oxidation of hydrogen to water and nitrogen, but the discharged EMF is similar to that of the hydrogen oxygen cell, ठीक है। So this is all about the hydrogen as a fuel cell. Okay, आगे है कंपैरिजन है हाइड्रोजन फ्यूल सेल और बैटरी के बीच में। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल और बैटरी के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें तो इसमें पहला कंपैरिजन ये होगा कि जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है वो ओपन सिस्टम है, और गैल्वेनिक सेल मतलब बैटरी सेल वो क्या है? वो क्लोज सिस्टम है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में बेसिकली एनोड एंड कैथोड आर गैसेस मेक कांटेक्ट विद प्लैनेटेरियम कैटलिस्ट, और गैल्वेनिक बैटरी में एनोड एंड कैथोड आर मेटल्स। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में रिएक्टेंट्स आर एक्सटर्नली सप्लाइड, नो रिचार्जिंग रिक्वायर्ड, लेकिन बैटरी में क्या होता है? रिएक्टेंट्स आर इंटरनली कंडक्टेड, रिक्वायर्ड पीरियोडिक
रिचार्जिंग, बैटरी को हम बार बार चार्ज करते हैं क्योंकि वो डिस्चार्ज हो जाती है। फ्यूल सेल और अगर हम आईसी इंजन के बीच में एक कंपैरिजन करें तो उसकी सिमिलैरिटी ये है कि बोथ यूज हाइड्रोजन रिच फ्यूल, both employ compressed air as the oxidant and both require cooling. और डिसिमिलैरिटी क्या है? आउटपुट जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल का आउटपुट इज इलेक्ट्रिकल वर्क, आईसी इंजन आउटपुट इज मैकेनिकल वर्क. फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट रिस्पॉन्ड इलेक्ट्रोकेमिकली इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल और आईसी इंजन में फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट रिएक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ कंबशन. हाइड्रोजन फ्यूल सेल में मॉडेस्ट टू नील पोल्यूशन प्रोड्यूस और आईसी इंजन में यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल कैन जनरेट कंसिडरेबल पोल्यूशन. ठीक है, अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं. 40% efficiency generated converting methanol to hydrogen in reformer. 80% of hydrogen energy content converted into electrical energy, and 80% efficiency for inverter motor converts the electrical to mechanical energy. So overall efficiency is 24 to 32%. तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो जो उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी है वो इट इज ऑल अबाउट 24 टू 32%. एडवांटेजेस बहुत सारे हैं. पहला है इको फ्रेंडली, बताया है. हाई एनर्जी हाई कन्वर्जन एफिशिएंसी, अभी पढ़ाया. एक्सट्रीमली लो एमिशन, नो पोल्यूशन. noiseless operation, so readily accepted in residential area. Availability to use at any location, so less transmission and distribution losses. No requirement of cooling tower as conventional plant. Less space required as compared to conventional plant. Right. What are the disadvantages? Higher initial cost. Service life काफी कम है, lower service life. Fueling fuel cell is still a major problem since the production, transportation and distribution and storage of hydrogen is difficult. We all know that कि hydrogen का production और transportation और distribution एक difficult process है. The technology is not yet fully developed and few products are available. Fuel cell are currently very expensive to produce since most units are handmade. अब application देख लेते हैं. Domestic power, central power station, automotive vehicles and special application. और इसके recent development कौन कौन से हैं? LLC लैथम न्यूयॉर्क में सक्सेसफुली डेवलप किया है. 50 किलोवाट का पावर प्लांट है. फ्यूल सेल ऑफ कैपेसिटी 1.5 किलोवाट इज पावरिंग हाउसेस इन ऑस्ट्रेलिया. गेल जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन एस्टेब्लिशिंग फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फ्यूल सेल व्हीकल्स इन इंडिया. और CECRI हैज डेवलप्ड एंड टेस्टेड MCF स्टैक. और मेजर ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से वर्क कर रहे हैं? Ministry of NCES, IITs, different IITs, CSIR labs, BHEL, GAIL, BARC and MIT. ठीक है. So this is all about your fuel cell. This lecture was all about your fuel cell. हमने इसमें introduction, what are the different types of fuel cell, what are the advantages, disadvantages, limitations, application, and what are the different comparison between fuel cell, battery cell and IC engine, and what are the different organization working on fuel cell. So this is all about the fuel cell, and this lecture brings an end to unit 3. We have discussed all the topics which are covered in unit 3, that is geothermal energy. Now in next lecture we'll start a fresh unit, that is unit 4. So that's all for today's lecture. We'll talk about the fresh lecture in tomorrow's lecture, that is in upcoming lecture. So thank you student. If you have any queries, you can ask your queries about this lecture as well as about the previous lecture. Thank you so much. हाँ बताओ क्लास. हेलो, अरे कोई बोलेगा?